Namaskar, we welcome you to the 30th episode of the series Udyamita Ki Or. The series is an initiative by National Center for Innovations in Distance Education, IGNOU. The program aims to foster a spirit of innovation and entrepreneurship among students and faculty members at the university. Till now, we have had episodes carrying discussions by the experts on entrepreneurial opportunities available in different sectors. The viewers were provided information about the entrepreneurial opportunities, existing innovations and startups in a particular area, and the funding resources available. So far, we have had sessions on innovation and entrepreneurship opportunities in various sectors including food processing, waste management, healthcare, tourism, environmental sciences, urban planning and development, geographical sciences, biochemistry, e-commerce, fintech, medicinal plants, agri-tech, education, edtech, rural tourism, and media and mass communication. In today's session, the topic of discussion is fostering a culture of innovation and startups in the university. For the discussion, we have with us the team from National Center for Innovations in Distance Education, IGNOU. Dr. O.P. Sharma, Director, NCID, IGNOU. Dr. Jyotsna Dikshit, Additional Director, NCID, IGNOU. Dr. Momita Das, Deputy Director, NCID, IGNOU. And myself, Dr. Sujata Santosh, Assistant Director, NCID, IGNOU. The National Center for Innovations in Distance Education at the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, is an all-embracing facility for promoting, supporting, re-engineering and disseminating innovations in open and distance learning system. It is a ground for nurturing bright and inquisitive minds whose ideas and explorations are expected to revolutionize the open and distance learning system and thus provide for transforming India into a learning society. The activities of the center are oriented towards promoting and nurturing innovations in the ODL system. NCID has been focusing on the 7 thrust areas including creating a culture of innovation and entrepreneurship in the university, incubation and nurturing innovators, capacity building for innovation, development of innovative learning and support solutions, research and benchmarking for quality management, documentation and dissemination, and collaboration and networking. NCID has organized several activities covering these thrust areas. In this way, it has been actively involved in nurturing and creating a vibrant innovation and startup ecosystem in the university. In today's session, we will be discussing more about NCID's initiatives towards fostering a culture of innovation and startup in the university. So let us carry the discussion forward, and I would invite Dr. Sharma to please tell us first about the genesis of NCID. Thank you, Dr. Sujata. This is 30th episode of Udyamita Ki Or. So far, we have talked about innovation and startup opportunities in different sectors. And the National Center for Innovation in Distance Education at IGNOU, it has been organizing various kind of activities for that purpose, to create a kind of a culture, motivate the students, encourage them towards innovation and startup. For that purpose, IGNOU, way back in 1985, had set up a dedicated center for innovation, entrepreneurship and startup. That was the National Center for Innovation in Distance Education. The basic activities, I can say, of the NCID, they include promoting the innovation in the university, supporting, re-engineering the processes, and developing innovative teaching learning solutions, and documenting and disseminating the innovative practices in the university. Since its inception, it has tried to create a culture in the university, and I can say it has been very successful in
developing that culture and innovation in startup ecosystem in the university. Many of our students, alumni, faculty and staff, they are now coming forward with innovative ideas. They are developing innovations, setting up startups, and also participating in a different other activities organized by different organizations, including the ministries, government organizations. And if we say that the kind of potential IGNOU has in terms of its number of students, number of alumni, these all activities are basically trying to encourage those all potential innovators and startups. And the objective or the aim of the NCID is being fulfilled by bringing the potential innovators, budding entrepreneurs into this this whole picture of contributing towards the Vikasit Bharat at 2047, and also the Startup India mission of the Government of India. So this National Center for Innovation and Distance Education, I can say, is a very important entity in the university, trying to encourage students, creating awareness, motivating them towards the innovation and startup, at the same time providing them right kind of support, training, capacity building, networking with other students, other industry persons, experts, faculty in the university, and many more things are being done. So the purpose of today's program is basically to connect with our students, to tell the audience that what kind of things, what kind of activities the National Center for Innovation and Distance Education is doing, how they are useful to you, and how you can participate and take advantage of those. So we can say over last 5-6 years, the NCID has tried to create a innovation and startup ecosystem which is very vibrant. Many activities are being organized at headquarters, involving the regional centers, other organizations. So that is basically, we can say, the genesis and objective of the National Center for Innovation and Distance Education. Initially, it was focusing on the innovations in the field of open and distance learning, but जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज चेंज हुई, उनका फोकस स्टूडेंट्स और यूथ को मोबिलाइज करने की तरफ हुआ कि इनोवेशन स्टार्टअप में उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए. एट द सेम टाइम NCID ऑल्सो ट्राई टू चेंज इट्स activities, focusing towards the youth, students and alumni of the students. So now the NCID is basically is working on two fronts, doing innovation startup for the university and also encouraging, guiding, mentoring the students and alumni. That is. Yeah, and there is one additional point which I would like to focus here is that because of the initiatives which IGNOU has taken in the field of innovations, creativity and entrepreneurship, for an open and distance learning system, this was something which is a paradigm shift. Now IGNOU plays an important role whenever there is an NIRF to be filled for the innovation category. IGNOU has also, obtained several awards from the various government agencies. And wherever we have been going, wherever students have been performing, there is one thing which comes up in everyone's mind, that how can an ODL system perform this well, and how can innovations and entrepreneurship kind of activity is being carried out so well in an ODL system where the students are distributed. And there, through NCID, IGNOU has played a very crucial role and has paved the way for other universities in the ODL system to move ahead, where our student can also think big, dream big, and achieve something for the betterment of the world. So certainly NCID, as Dr. Sharma mentioned, that initially focused on systemic innovations, for which we were in fact established. From there we moved ahead, and then our students, they collaborated with us, we mentored them, and today
with the help of our students, with the help of our faculty members, with the help of our regional centers, we are able to establish an innovation and startup ecosystem, which we will be discussing further. इनफैक्ट यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि सिस्टमिक रिसर्च करने के साथ साथ जिस तरीके से हमने एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ इग्नो में टुवर्ड्स द इनोवेशन स्टार्टअप एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, ये जो अवार्ड्स और अचीवमेंट्स, दे आर बेसिकली आई कैन से द बाई प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ये सब कुछ होगा। हमारा फोकस ये था कि किस तरीके से हम अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन और स्टार्टअप की तरफ में उनको मोल्ड करें, उनको मोटिवेट करें, और एज ए रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ये कि एक आउटकम हमारे लिए हुआ, अचीवमेंट हुआ है। दैट इज़ सर्टेनली ए मोटिवेशन एंड इनकरेजिंग टू ऑल ऑफ अस। सेकेंडली एक चीज़ और भी है कि बिकॉज जैसे डॉक्टर ज्योत्सना ने कहा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम होते हुए हमारे लिए कितना चैलेंजिंग था, जहाँ के हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल हमसे अलग हैं, बहुत फ्रीक्वेंट फिजिकल हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाता है। उस सिचुएशन में बहुत ही चैलेंजिंग रहते हुए भी हम लोगों ने, NCID ने पर्टिकुलरली और विद द हेल्प ऑफ ऑल रीजनल सेंटर्स एंड स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ जो अचीवमेंट किए हैं और स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया है, और उसका हमें रिजल्ट जो विजिबल है वो बहुत ही एनकरेजिंग है। एंड इनफैक्ट इट इज़ बिकमिंग ए रोल मॉडल फॉर नॉट ओनली फॉर द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़, बाकी के जो कन्वेंशनल सिस्टम है दे आर ऑल्सो नाउ बीइंग मेंटर्ड बाय इग्नो। पिछले कुछ सालों में इग्नो इस स्थिति तक पहुंच गया है कि हमने 2024-25 में 5 इंस्टीट्यूट्स को मेंटर किया कि हाउ टू डेवलप इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन देयर इंस्टीट्यूट, एंड दे हैव इम्प्रूव्ड देयर रेटिंग इन द इनोवेशन कैटेगरी। सिमिलरली 2 साल पहले और हमने 5 इंस्टीट्यूट्स को किया। सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ you can say the result or outcome of the activities performed by the NCID. ममिता कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है, हमारा बेसिकली जो इनोवेशन इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, देयर आर बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन। कल्चर ऑफ इनोवेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं या हम मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करते हैं। उसी के साथ में दूसरा एक्टिविटी होता है कि जो हमारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नो हैज़ ए वेरी वास्ट डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड एलुमनी, तो उन सभी तक पहुंच पाना हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके साथ में मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग करना, एंड देन नेटवर्किंग, डॉक्यूमेंटेशन, मैनी एस्पेक्ट्स आर देयर इन द इनोवेशन इकोसिस्टम। जो आप अगर स्क्रीन पे अगर हम दिखाना चाहें तो यू कैन सी ए ग्लिम्स ऑफ द इनोवेशन इकोसिस्टम इन द यूनिवर्सिटी, वेयर वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस ऑफ द इनोवेशन इकोसिस्टम इन द यूनिवर्सिटी, जिसमें से पहला जो स्टेज है हमारा टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप। तो कल्चर क्रिएट करने में एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें एक फेसबुक लाइव सेशंस की बात करें हम या फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ की बात करें, तो डॉक्टर मोमिता आई थिंक यू कैन टेल समथिंग अबाउट। श्योर, एक्चुअली अभी आप जैसे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। पहली बात तो ये है कि इग्नू हैज़ गॉट अ नेशनल रीच, तो इंडिया के किसी भी कोने में जहाँ पे इग्नू रीच करता है, बीट जम्मू कश्मीर या बीट इवन पोर्ट ब्लेयर इन द साउथ, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, या वेस्ट में गुजरात है और राजस्थान में यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री वी आर केटरिंग टू देम। एंड इग्नू के इसी सुविधा की वजह से हम लोग बहुत दूर तक अपने स्टूडेंट्स को रीच कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर रीजनल सेंटर्स। तो ये जो इकोसिस्टम बना है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, ये हमारे NCID के साथ साथ हमारे जो स्कूल्स हैं, उसके बाद जो रीजनल सेंटर्स हैं, सब इकट्ठे बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे, उनका जो डेमोग्राफी की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें यह है कि ड्रॉप आउट्स हैं, मतलब कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट इनोवेटर्स हमने पाए हैं जो कि एक्चुअली ड्रॉप आउट करके फिर उन्होंने इग्नू में
रीएडमिशन ले करके, और अब वो इतना अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं कि दे आर स्टैंडिंग एट पार विद इवन आई वुड से IIT स्टूडेंट्स. कई फेस्टिवल्स में, कई नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में वो भाग ले रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग इग्नू प्राउड बाय विनिंग अवार्ड्स एंड इवन ग्रांट्स. तो हम जिस कैटेगरी को ऑफ स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं टू ब्रिंग आउट दैट देयर क्रिएटिव इनोवेटिव पोटेंशियल आउट, वो तो बिल्कुल ही इस देश के कोने कोने में वो डिसएडवांटेज्ड अनरीच्ड एरिया से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं. एक हमारी स्टूडेंट हैं जो हिमाचल प्रदेश के एक रिमोट विलेज में रहती थी, और थ्रू हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके वजह से वो नेशनल लेवल पे आई और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया. और वो एक it's a very encouraging thing that we are able to cater to such girls जो ऐसे एरियाज़ में रहती हैं जहाँ पे फैसिलिटी इतना नहीं मिल पाता है इनोवेशन करने के लिए. सिमिलरली जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उसमें हमारे अवॉर्डी भी हैं जो डिसेबल्ड है, बट ही हैज़ डिज़ाइंड बाइक जो कि which can be driven by people who don't have arms and legs also. इसमें एक मेन चीज़ ये है कि जैसे कि डॉक्टर मौमिता बता रही हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डेमोग्राफिकली, जोग्राफिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और उन तक पहुंच पाना हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज रहा है. और चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मैं कहूँगा कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, वी आर एबल टू कनेक्ट विद यू थ्रू दिस प्रोग्राम, या हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम वर्चुअल सेशंस होते हैं, दे हैव हेल्प्ड अस. और उसी सीरीज़ में हमने एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट भी किया टू रीच आउट टू लार्ज नंबर ऑफ IGNOU स्टूडेंट्स एंड एलुमनी. दैट वाज टू मेक अवेयरनेस अबाउट द इनोवेशन स्टार्टअप एंड टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स इनोवेशन स्टार्टअप. वो था फेसबुक लाइव सेशंस, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि लगभग जिस किसी के पास में मोबाइल है उसके हाथ तक फेसबुक की रीच है. और फेसबुक लाइव सेशंस करने का हमारा मकसद ये था कि इनोवेशन स्टार्टअप की जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें हम, या मोटिवेशनल स्टोरीज़ की बात करें, सक्सेस स्टोरीज़ बाय IGNOU स्टूडेंट्स, चाहे वो इनोवेशन स्टोरीज़ हों, स्टोरीज़ ऑफ स्टार्टअप्स हों, या और किसी तरीके की हों, वो जो हम लोगों ने एक फेसबुक लाइव सेशन किया था. यू कैन टेल समथिंग अबाउट दैट. इनफैक्ट वो जो सेशंस थे फेसबुक लाइव के, वो हमने कोविड पैंडेमिक टाइम में किया था, और सब अपने घरों में बंद थे. एंड एट दैट टाइम हमने NCID में ये फेसबुक लाइव सेशन शुरू करा, और वी कुड रीच नियरली 50 एपिसोड्स एंड ऑलमोस्ट 50, एंड उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हमने इनवाइट किया, और उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इनोवेशन पे उन्होंने फेसबुक लाइव में टॉक दिया. एंड दोज टॉक्स आर स्टिल अवेलेबल ऑन द फेसबुक लाइव. एंड उसके बाद जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सुनने के बाद में दे गॉट मोटिवेटेड, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए फिर. और उसके बाद जो प्रोग्राम्स हमने सब्सिक्वेंटली किया उसमें वो स्टूडेंट्स आज काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. ये उसकी खास बात ये रही बेसिकली कि हमने उसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप की लगभग सारी जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किया, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स किए, और वो रीच तो थी उसकी. और सबसे अच्छी बात आज की डेट में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि वो जो सेशंस थे स्टिल दे आर अवेलेबल ऑन YouTube एंड आवर पोर्टल, और वो बहुत ही यूज़फुल हैं. तो जब कभी भी आपको मौका मिलता है आप ज़रूर उनको देखिएगा. उनमें बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव, नॉलेज वाले वीडियो प्रोग्राम्स हैं जिनको उसमें कवर किया गया था, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर किया. डॉक्टर ज्योत्सना आप कुछ? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारा मेन चैलेंज रहा हमेशा कि स्टूडेंट्स तो हमारे साथ नहीं है. यूजुअली कन्वेंशनल सिस्टम में अगर आप इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आर अराउंड, यू हैव लैब्स, यू कैन वर्क विद द स्टूडेंट्स, यू कैन कम अप विद द सोल्यूशन. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं हैं, दे आर जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जो एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच NCID ने यूटिलाइज की कि कैसे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वर्चुअली हम स्टूडेंट्स से जुड़ सकें. तो जो सबसे पहले मुद्दा आता है कि स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें. नो डाउट बहुत सारे ऐसे IGNOU स्टूडेंट्स हैं आज भी जो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं, या कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया उनके मन में है, बट हाउ टू टैप देम वाज द फर्स्ट चैलेंज.
तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि वी क्रिएटेड एन इग्नो उद्यमी पोर्टल. उस पोर्टल में वी पुट इट अक्रॉस द फेसबुक कि उसमें स्टूडेंट्स लॉग इन कर सकते हैं. इग्नो के वेबसाइट पे उसका लिंक था और उससे वो रजिस्टर करें हमारे पास. उसमें हमने 3 कैटेगरीज रखी. एक तो वो स्टूडेंट्स हो जनरली बस वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन, क्या है, स्टार्टअप्स कैसे क्या होते हैं, हम इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बेसिक आइडिया जस्ट अवेयरनेस के लिए. एंड देन देर इज अनदर कैटेगरी विच इज़ काइंड ऑफ अ बर्डिंग इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो अभी इस जर्नी में चलना चाहते हैं. इधर दे वांट टू बी इनोवेटर्स या दे हैव अ बिजनेस आइडिया एंड दे वांट टू कन्वर्ट इट इनटू स्टार्टअप्स. और एक थर्ड कैटेगरी है जो वेल स्टैब्लिश्ड दे आर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. तो जब हमने इस तरह का की स्कीम को चलाया, एक पोर्टल को स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, सो 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया. तो वो हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ, और जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट जो है स्टूडेंट्स को वर एबल टू कनेक्ट टू NCID. अब जब इस तरह की सुविधा हमने प्रदान कर दी तो हमारे पास डेटाबेस आया. अब सबसे पहले इस कड़ी में जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जागरूक स्टूडेंट्स को फर्दर जागरूकता देना, जो इंटरेस्टेड है कि कैसे हम इनोवेशंस कर सकते हैं, कैसे हम अपना स्टार्टअप बना सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसे मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कराए. और मेरे कोलीग्स को ध्यान होगा कि ये हम लोग ने कोविड पेंडेमिक के पीक टाइम पे शुरू किया था. और बीइंग योर ओन बॉस करके वो पहली सीरीज थी जो हमने अंडर द आइडिया टू स्टार्टअप स्कीम के तहत अपने बच्चों को जो है सारे वर्चुअल सेशंस प्रोवाइड करे. और ड्यूरिंग दैट दोज सेशंस वी आल्सो अंडरस्टूड कि सिर्फ बच्चों को अवेयरनेस करा देना या उनको आइडेंटिफाई करना ही हर चीज़ नहीं है. अब इनको ना एक काइंड ऑफ मेंटरिंग की ज़रूरत है. अब बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए, उस टाइम तो वैसे भी कोविड में सब चीज़ें बंद थी, कोई और माध्यम फेस टू फेस पहुंचने का उनको नहीं था. तो फिर एक आइडिया हुआ कि वाई नॉट वी क्रिएट NCID's वर्चुअल इंक्यूबेटर हम क्रिएट करते हैं. और वहाँ पे हम जो इंक्यूबेशन की जो प्रोसेस अदरवाइज फेस टू फेस किसी भी इंक्यूबेटर में होती है, हम कितनी प्रोसेसेस को वर्चुअली बच्चों तक पहुँचा सकें और मैनेज कर सकें. देन ओनली अवर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस गैमेट ऑफ इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप व्हिच वी आर टॉकिंग टुडे. तो उसके लिए हमने एक वर्चुअल इंक्यूबेटर 29 अप्रैल 2020 को स्टैब्लिश किया, लॉन्च हुआ वो. और करीब 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज की तारीख में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. उसमें उनके लिए करीब नहीं तो 500 से ऊपर एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, जिसमें कि जो डॉक्टर शर्मा कह रहे थे फेसबुक लाइव सेशंस भी अवेलेबल हैं. हमारा जो यूट्यूब के लिंक्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम जो पिछले 4-5 सालों में करे हैं, वो सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ उनके लिए अवेलेबल हैं. और साथ ही में फिर जब हमें ये एक्सपीरियंस हुआ तो हमने क्या किया कि अब इग्नो के बच्चों का जो अचीवमेंट है उसको हम कैसे शोकेस करें. तो वहाँ हमने उनकी स्टार्टअप स्टोरीज, उनकी इनोवेशन स्टोरीज, उसको भी वहाँ पे हमने एक स्पेस दिया सो दैट जो उन्होंने अच्छे नए काम किए वो पूरी दुनिया को दिखे. तो इस तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम पूरा बना के हमने कोशिश की कि राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू जनरेटिंग अवेयरनेस टू काइंड ऑफ गिविंग प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट टू अवर स्टूडेंट्स, हम वर्चुअली इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए. और मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगी कि हमने अगस्त 2020 में एक स्टूडेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम किया था सीड नाम से, जो बहुत ही प्रचलित हुआ. स्टूडेंट्स ने उसको बहुत लाइक किया. और उसमें हम लोगों ने ये भी मेथडोलॉजी टेस्ट की कि अगर आपको डिस्टेंस एजुकेशन में एक्चुअल लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करना है, सो देन आफ्टर एवरी सेशन देर वॉज अ क्विज फॉर द स्टूडेंट्स, देर वॉज एन एक्टिविटी. उसमें ई पोर्टफोलियो भी हम लोग ने स्टूडेंट्स का मेंटेन किया एंड स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी. एंड सम ऑफ देम सेड कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे इवन टुक नेम ऑफ कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड, कि हम उस लेवल की डेडिकेशन और उस लेवल का कंटेंट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पाते हैं. तो ये कुछ हम लोगों के वर्चुअल इनिशिएटिव्स थे जिससे कि आज हम अपने बच्चों तक पहुंच पाए. और हमारे इन वर्चुअल इनिशिएटिव्स की वजह से ही बच्चे आज हमसे जुड़े हुए हैं. और हम लोगों को वाकई ये बहुत खुशी होती है आप सबको बताने की ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज से 4 साल पहले 5 साल पहले आइडिया स्टेज में थे और आज उनका अपना स्टार्टअप है या उन्होंने कोई ना कोई अपना वेंचर आज की तारीख में खड़ा करके रखा है. इनफैक्ट ये जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं और इन्हीं में जो कल्चर ऑफ
इनोवेशन की हम जो बात कर रहे थे, उसी में ये जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम है और 30वां जो एपिसोड की बात कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही विजुलाइज हुआ। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि इनोवेशन स्टार्टअप करना चाहिए, लेकिन अगर आपका फील्ड है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं मुझे एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या स्टार्टअप कर सकता हूँ, क्या इनोवेशन कर सकता हूँ, या हेल्थ सेक्टर में मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जब दिमाग में आया, हम लोगों ने फीडबैक, क्योंकि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, एलुमनी, उनकी फीडबैक भी लें और उसके आधार पे अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करें और एग्जीक्यूट करें। उसी कड़ी में ये जो उद्यमिता की ओर जो आज का जिसका 30वां एपिसोड है, इसकी भी शुरुआत हुई। और इसमें मैं डॉक्टर जो सुजाता से कहूँगा कि बताएं थोड़ा सा कि इसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरीके से ये यूज़फुल है उद्यमिता की ओर, क्या खासियत है इसकी? इस सीरीज में हमने काफ़ी वास्ट सेक्टर्स को कवर किया है। जो भी अभी लेटेस्ट सेक्टर्स, अपकमिंग सेक्टर्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, वो सभी सेक्टर्स लिए गए हैं, जैसे फिनटेक, ई कॉमर्स, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, फिर एड टेक है, एजुकेशन है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हमने इन 30 एपिसोड्स में कवर किए हैं और इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है बिकॉज हर एपिसोड में वो सेक्टर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस टाइप के स्टार्टअप्स आ रहे हैं और कैसे फंड्स वहाँ से वो ले सकते हैं और कहाँ से शुरुआत करनी है। मीन्स अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, आप सबसे छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी एक्सपर्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को मिलती है और बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और ये सारे एपिसोड्स हमने ये जो हमारा पोर्टल है इग्नू उद्यमी, उस पे हमने प्रोवाइड किए हैं, पूरा एक पेज क्रिएट करके, और सभी ये यूट्यूब वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। एक यूज़फुल रिसोर्स है जिसको स्टूडेंट्स एक्सेस कर रहे हैं, दे कैन एक्सेस एनी टाइम एट देयर कन्वीनियंस। सो इनफैक्ट ये जो प्रोग्राम थे, इनका पर्पज यही था, अगर आपका इंटरेस्ट टूरिज्म में है और टूरिज्म में चाहे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, टूरिज्म में इंटरेस्ट है, अगर आप टूरिज्म में कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो एक सवाल आता है मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वीडियो प्रोग्राम है, सेशंस हैं इसके उद्यमिता की ओर वाले, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल और रिलेवेंट है। और जैसा डॉक्टर सुजाता ने बताया कि वो हमारे रिपोजिटरी में अवेलेबल हैं। नवरीति हमारा जो वर्चुअल इनक्यूबेटर है उसके साथ लिंक दी हुई है, सेपरेट उनका पेज बना हुआ है, एंड दीज लिंक्स आर ऑल अवेलेबल ऑन इग्नोज वेबसाइट। तो मैं कहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, किसी भी प्रोग्राम के हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड वहाँ वीडियो मिलता है, और हमने अब तक कोशिश करी है कि चाहे वो साइंसेस के हों, सोशल साइंसेस के हों, या हमारे लैंग्वेजेस के हों, या टूरिज्म के, एग्रीकल्चर, किसी भी फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ न कुछ उसमें मिलेगा। सो दैट इज़ वेरी यूज़फुल रिसोर्स, और उसको अगर आप देखेंगे अपने प्रोग्राम करने के साथ साथ, अगर उसको देखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड ओनली आई विल ऐड जस्ट वन मोर पॉइंट हेयर। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बट दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कौन सा एरिया है जो मैं लूँ और कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये जो हमारी सीरीज़ थी, ये उसी बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस कर रही थी कि किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर ये इच्छा है तो उसको आगे रास्ता मिले। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। With changing times, not only the waste generation has increased, but it has become more toxic, dangerous, and persists in the environment for several hundred years. Today, when we talk about waste management, it is not just collection and transportation of the waste, but rather it involves much more. Today, we must talk about waste management, what it is. Waste management is something which requires a holistic perspective, where we do not only deal with the waste, but rather look into the social, financial, and institutional aspects of the waste management.
Indira Gandhi National Open University offers postgraduate diploma in waste management. The program is available in both the January and July cycle of admissions. I must tell you that there are 6 compulsory theory courses and 1 is the project work. When you do the project work, you come to know about what are the issues related to waste management on the ground. The program is offered in English medium, and now you must be wondering that whether I can take the admission or not. So the answer is, if you are a graduate from any discipline, you can enroll for this course. If you are working in the waste management sector, if you are a mid-career professional, if you are keen to know what is waste management, and further, if you want to start up your own business in waste management, if you have that entrepreneurial ability, the program is must for you. You must enroll for this program to know more about waste management. The program gives you a thorough understanding of the various sources of the waste, the effects of the waste, and also how to manage it. To know more, log into www.ignou.ac.in. We are here welcoming you to join for this program, that is Postgraduate Diploma in Waste Management. Thank you. तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एनसीआईडी कैरी आउट करता है फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द यूनिवर्सिटी। देन इसके लिए क्या है, आइडिया टू स्टार्टअप मींस आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये भी एक प्रोसेस है जो बहुत ही केयरफुली डिज़ाइंड है और इसमें काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, चैलेंजेस टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट हुआ यह है कि जैसे हमने जितना सारा एक्टिविटीज़ करना शुरू किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब होने लगी तो बहुत स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ा और उनका यह है कि मैं भी स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ इनोवेशन करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ या डेवलप कर लिया है। तो एक पहला सवाल ये था कि इतने लाखों स्टूडेंट्स को हम कनेक्ट कैसे करें या वो हम तक कैसे पहुँचाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक तो जो डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि इग्नू उद्यमी हमारा पोर्टल है, जिसके बारे में भी बताया था। इग्नू उद्यमी पोर्टल वेबसाइट पे है और उसमें अभी भी जो हमें देख रहे हैं, अगर इफ उनका अगर कोई इस तरीके का आइडिया है तो वो इग्नू उद्यमी पोर्टल पर रजिस्टर करें। इसके अलावा जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ये थी कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को और इनकरेज करें और आइडेंटिफाई करें। उसके लिए चाहे वो आइडिया कंपटीशन हो, आइडियाथॉन हो या फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ हो या इनोवेशन अवार्ड कंपटीशन हो, स्टार्टअप कंपटीशन हो, बिजनेस प्लान कंपटीशन हो, इस तरीके के बहुत सारे कंपटीशंस हम थ्रू आउट द ईयर रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं। और इन सब का पर्पस क्या है कि अगर आपके दिमाग में एक बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस या कोई प्रोडक्ट डेवलप करने का आइडिया है और आप चाहते हैं कि वो कहीं इग्नो या हम तक पहुंचे और उस पर फर्दर काम करना चाहते हैं, तो हमारा आइडियाथॉन या आइडिया कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करके आप हम तक पहुंच सकते हैं। उसमें हम बेस्ट पोटेंशियल आइडियाज़ को अवार्ड भी करते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करके फर्दर
एम्पावर करना, ट्रेनिंग करना, जैसे डॉक्टर ज्योत्सना बता रही थी, वो एक रेगुलर एक्टिविटी है, सो दैट कि आप उस अपने आइडिया को प्रॉपर स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइडिया टू स्टार्टअप ये एक फुल फ्लेजेड एक स्कीम है NCID में, जिसमें हम आइडिया इनवाइट करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई करना, पोटेंशियल आइडियाज़ को नर्चर करना, ट्रेनिंग देना वर्कशॉप्स के थ्रू और डिफरेंट सेशंस के थ्रू, फिर उसके बाद मेंटरिंग करना, देन उनको गाइड करना कि कहाँ किस तरीके से फंडिंग मिल सकती है, कैसे आपको बिजनेस प्लान डेवलप करना है, बिजनेस प्लान डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करना या बिजनेस मॉडल कैनवास डेवलप करना, ये सारे एस्पेक्ट उसमें कवर करते हैं। फाइनली प्रोटोटाइप डेवलप करना और उसको कैसे कमर्शलाइज करते हैं। आप देख सकते हैं कि आइडिया टू स्टार्टअप एक स्कीम जिसमें हम ये सारी चीज़ करते हैं, और वो बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि आपके आइडियाज़ हम तक पहुंच रहे हैं आइडिया कंपटीशन के थ्रू, आपके स्टार्टअप्स पहुंच रहे हैं हमें बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड के थ्रू, आपके इनोवेशंस हम तक पहुंच रहे हैं बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के थ्रू, बिजनेस प्लान्स हम तक आ रहे हैं आपके बिजनेस प्लान कंपटीशन के थ्रू। ये सारी एक्टिविटीज़ में जिन पोटेंशियल इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको हम आइडिया टू स्टार्टअप स्कीम में कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और स्कीम हमारी है जो कि मेंटरिंग फॉर स्टार्टअप है। मेंटरिंग फॉर स्टार्टअप में अगर हम देखेंगे तो वो भी जो आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको फर्दर किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे, और उसको अगर डॉक्टर ज्योत्सना अगर कुछ एलाबोरेट करें इसके बारे में तो अच्छा रहेगा। जी, ये जो मेंटरिंग फॉर स्टार्टअप स्कीम है, एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं तो ये पूरा हमने बढ़िया सा एक शेड्यूल बनाया होता है कि बिफोर एन आइडिया कंपटीशन देयर इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम रिलेटेड टू जनरेटिंग आइडियाज, रिलेटेड टू द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस. Once the idea competition is over, then again we have an awareness program where we will go for kind of a prototype development, और उसी के साथ कनेक्टेड रहता है कंपटीशन फॉर बिजनेस प्लान. अच्छा, जब भी हम कोई कंपटीशन करते हैं तो इट्स नॉट मेयरली अ कंपटीशन, कंपटीशन इज द आउटपुट, बट हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वी ट्रेन अवर स्टूडेंट्स. अब जैसे अभी फ़िलहाल इस टाइम पे एक बिजनेस प्लान कंपटीशन चल रहा है, सो व्हाट वी डू इज दैट वी आर प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग हाउ टू डेवलप अ बिजनेस मॉडल कैनवस. देन उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ट्रेनिंग मिलेगी हाउ टू डेवलप अ बिजनेस प्लान, एंड देन दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस प्लान कंपटीशन. लेकिन इन सारी चीज़ों में हमने ये पाया कि जब ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो 100 से ज़्यादा कई बार स्टूडेंट्स उसमें आ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं नाउ दे हैव देयर आइडिया, they cannot discuss with in a public platform. So then उनको अगर अपने आइडिया को फर्दर डेवलप करना है, उसका प्रोटोटाइप बनाना है सपोज करिए, so then we have a mentoring team with NCID faculty members and innovation ambassadors, the faculty innovation ambassadors of IGNOU. और फिर हम क्या करते हैं कि लाइक वी आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स, और उनके साथ हमने अपने मेंटर्स को इंक्लूडिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़ के रखा है, और फिर दे डिस्कस एंड दे गाइड द स्टूडेंट्स. उनके कई बारी वीकली सेशंस होते हैं, कई बारी मंथली सेशंस होते हैं, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ 1-to-1 प्रोसेस. समटाइम्स ये भी होता है कि जैसे कुछ जेनरिक कॉन्सेप्ट्स हैं, से IPR रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, या अगर किस तरीके से उनको अपने फंडिंग के लिए आगे बढ़ना है, अगर इस तरह की कोई जेनरिक चीज़ें होती हैं, सो व्हाट वी डू इज़ दैट वी क्रिएट अ काइंड ऑफ अ 1-to-many सेशन. लेकिन उसमें भी जो हमारा मेन फोकस होता है कि जिन लोगों को, जो बच्चे सीरियस हैं, जिनको अपने आइडिया को स्टार्टअप तक ले जाना है, या वो कॉमर्शलाइजेशन के लिए अब बढ़ रहे हैं, या उनको स्टार्टअप स्टैब्लिश करना है, तो उनको कैसे कंपनी फॉर्म करनी है, कैसे उनको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो नॉलेज होती है या जो गाइडेंस होती है वो हम मेंटरिंग प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चों तक पहुंचाते हैं, और ये अवेयरनेस से एक स्टेप आगे की बात हो जाती है. इनफैक्ट ये जो अवेयरनेस और मेंटरिंग के बीच में जो प्री इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज़ है बेसिकली, जिसे हम कहेंगे कि आइडिया अगर कहीं जनरेट होकर के आया आपके दिमाग में, और उसको कैसे फर्दर इंक्यूबेट करना है, उसको कैसे रिफाइन करना है, वो सारी चीज़ें प्री इंक्यूबेशन की एक्टिविटीज़ में आता है. और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है NCID की, जिसमें जैसे हमने कहा कि वो आइडिया कंपटीशन हो या बिजनेस प्लान हो, तो ये प्री इंक्यूबेशन की एक्टिविटीज़ में भी आता है. इसके साथ साथ में जो एक हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ जो हो रहा है उसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमने सोचा और हो गया,
एक तो एनसीईआरटी का एक मैंडेट ही है, उसके एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। एट द सेम टाइम मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी भी डेवलप की है, और फॉर्चुनेटली आवर अथॉरिटीज़ एंड वाइस चांसलर दे हैव adopted that policy in the form of institutions innovation startup policy. और जो institutions innovation startup policy है, that is basically guiding factor, guiding document for us to conduct so many activities. और उसमें हमारे पास में ये डायरेक्शंस हैं कि हम ये सारी एक्टिविटीज़ आइडिया से लेकर के स्टार्टअप तक, और उनको किस तरीके से हम कमर्शलाइज भी करें। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हम जिस पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ टू सेटअप अ फिजिकल इंक्यूबेशन सेंटर एट द इग्नू। फिजिकल इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके साथ साथ हम रीजनल सेंटर पे भी हम प्लान कर रहे हैं, बिकॉज भले ही हमारे स्टूडेंट डिस्टेंस लर्नर हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम उनको लेते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर ये कहूँ डॉक्टर ज्योत्सना से कि अगर आप ये बताएं कि जो पॉलिसी हमारी है उसमें हमने अब तक क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, इन ब्रीफ इफ यू कैन हाईलाइट। देखिए, जो हमारी इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी है, इट स्टार्ट्स विद काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। वहाँ से फिर उसमें बहुत सारे इस तरह के सेक्शंस हैं विच एम्पावर्स द इग्नो स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई कि वो किस तरीके से अपने आइडियाज़ से लेके स्टार्टअप की जर्नी इग्नो के साथ मिलके तय कर सकते हैं। उसमें उनके आईपीआर के बारे में डिस्कशन है, इक्विटी के बारे में डिस्कशन है। देन देयर इज़ अ सेक्शन वेयर विच इनेबल्स द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ इग्नो बोथ एट हेडक्वार्टर्स एंड आरसी लेवल कि वो किस तरीके से अपने स्टार्टअप्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, व्हाट आर द नॉर्म्स, व्हाट आर द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। उसके साथ साथ कैपेसिटी डेवलपमेंट पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये सारी जो हमारी पॉलिसी का पार्ट है, तो मैं ये कहूँगी कि जो सबसे मेजर ब्रेक थ्रू है दैट इज़ कि हमारी जो ये पॉलिसी है वो प्लानिंग बोर्ड से अप्रूव हो गई है, एंड ये जल्दी ही जो है फॉर्मलाइज होके जब मेन स्ट्रीम में आएगी तो आवर स्टूडेंट्स एंड आवर फैकल्टी मेंबर्स बोथ ऑफ देम विल बी एम्पावर्ड टू सेट अप द स्टार्टअप्स। अब जब ये पॉलिसी हमारी लागू एक तरीके से हो रही है, तो जो शर्मा जी ने इंक्यूबेशन सेंटर की बात करी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसको ऐसे समझिए कि अभी तक हम लोग प्री इंक्यूबेशन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, हम लोग अवेयरनेस करते हैं, हम लोग मेंटरिंग करते हैं, बट देर आर से फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि एनसीईआरटी शुरुआत से ही फैकल्टी के साथ किस तरीके से ओडीएल सिस्टम के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाए, इस पे वर्क करता है। नाउ से इफ अ फैकल्टी हैज़ एन आइडिया and that idea they want to convert it into a startup, so they need a place, they might need a lab, they might need a computer lab if it is an edtech kind of an area where they want to work. So the policy enables the faculty members, enables the students to visit IGNOU, to sit in the lab, to have their own offices in the incubation center and grow and kind of give back not only to IGNOU but to the society. So I think जब हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जब बन जाएगा, और उस समय जो आप बात करें कि पॉलिसी ने जो डायरेक्शंस दिए हैं कि फैकल्टी को भी वो स्पेस मिलेगा, वो लैब मिल सकती है, उस सिटिंग एरिया मिलेगा वहाँ काम करने के लिए, आई थिंक वो उस समय काफ़ी पॉसिबल होगा। ये चीज़ है। फैकल्टी की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो फैकल्टी के माइंड में ऐसा नहीं कि हमेशा कोई स्टार्टअप या इनोवेशन के लिए आइडिया आ रहे हैं, कई बार अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि सिस्टमिक चेंजेस क्या होने चाहिए, चाहे वो इनोवेशन की बात करें या पॉलिसी चेंजेस की बात करें, प्रोसीजरल चेंज की बात करें, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की बात करें, तो ये बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो उनको एक तो ब्रेन स्टॉर्म करना और फिर उन पर किसी तरीके से एक्ट करना, हाउ टू एड्रेस दैम। इस कॉन्टेक्स्ट में भी क्योंकि फैकल्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा जो इनोवेशन एम्बेसडर की ये कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्शंस पे, आई थिंक मोर देन 27 फैकल्टी मेंबर्स दे हैव completed the training of innovation ambassador by the Ministry of Education। तो वो तो एक इनोवेशन एम्बेसडर हो ही गए यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स के और आइडियाज़ आते हैं, तो उन पे टाइम टू टाइम डिस्कस करने के लिए, ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए एनसीईआरटी ने 2015 में एक
इनोवेशन क्लब एट इग्नू भी इस्टेब्लिश किया, इनोवेशन क्लब एट इग्नू दैट वाज एट द हेडक्वार्टर। और सिंस देन मैं ये बताना चाहूँगा कि हर महीने कम से कम एक मीटिंग उसकी इनवेरिएबली होती है, जिसमें डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स अपने बैठते हैं वर्चुअली या फिजिकली, और अब तो हम हाइब्रिड मोड में बैठ करके बात करते हैं, बिकॉज हमारे रीजनल सेंटर्स के कुलीग भी उसमें शामिल होते हैं, और उसमें जिस तरीके के आइडियाज़ आते हैं, सब कुछ डेवलपमेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं डॉक्टर ज्योत्सना, बिकॉज यू हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग दैट इनोवेशन क्लब एट इग्नू। हाँ शर्मा जी, तो जो इनोवेशन क्लब एट इग्नू जब स्टैब्लिश हुआ तो सबसे पहला जो कार्य इस यूनिवर्सिटी में इनोवेशंस को लेके हुआ कि फैकल्टी मेंबर्स स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर ऑफ कि अच्छा इनोवेशंस सिस्टमिक हमारी इच्छा हम कर सकते हैं, बट नाउ देयर इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन डिस्कस आइडियाज़। नाउ बहुत सारे सिस्टमिक चैलेंजेस होते हैं एंड वन नीड्स अ प्लेस वेयर यू कैन ब्रेनस्टॉर्म, you can discuss ideas and you come with creative solutions। तो हमारे इनोवेशन क्लब की मीटिंग्स होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, कई बार हम वर्कशॉप्स कराते हैं अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए, एंड जैसे कि इट कुड बी ऑन AI टूल्स, हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पे भी वर्कशॉप्स कराया फैकल्टी मेंबर्स के लिए, इंक्लूडिंग अवर स्टूडेंट्स के लिए, और हमने ये पाया कि उसमें से बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं दे आर वर्केबल एंड अडेप्टेबल टू द इग्नो सिस्टम एंड इन ODL सिस्टम इन जनरल। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमने एक आइडिया बैंक एट इग्नो क्रिएट किया विच होल्ड्स राउंड अबाउट मोर देन नाउ 400 आइडियाज़ विच आर सिस्टमिक एज वेल एज। अभी रिसेंटली हमने एक पूरी इनोवेशन क्लब के तहत सीरीज करी थी ऑन इग्नोस विजन ऑन विकसित भारत एट 2047 कि इग्नो बाय द टाइम 2047 किस तरीके से विकसित भारत में एक रोल प्ले करेगा और इग्नो की क्या पोजीशन रहेगी। एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स दे जनरेटेड आइडियाज एंड वी आर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इट, और देयर इज अ मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हाउ टू रीच टू देम। तो इनोवेशन क्लब के तहत हमने ना ही सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स में इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, स्टार्टअप्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करवाई या हमारी इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस जनरेट कराई, बट साथ ही उनके साथ मिलके सिस्टमिक प्रॉब्लम्स पे आइडियाज़ जनरेट किए जो कि वर्केबल होते हैं। इसके साथ साथ जो एक मेजर चीज़ें हुई कुछ कि हमारे शुरुआत में जब इनोवेशन क्लब की मीटिंग्स में डिस्कशन होते थे तो उसमें जो छोटे छोटे सिस्टम्स के इनोवेशन निकलते थे, सो NCID विद अदर फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम वेरियस स्कूल्स ट्राइड टू क्रिएट प्रोटोटाइप। कुछ प्रोटोटाइप्स तो ऐसे बने जो आज इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ आर यूजिंग, कुछ प्रोटोटाइप्स ऐसे बने जो कि द यूनिवर्सिटी इज इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इट और इज ऑलरेडी यूजिंग। तो कई सारी इस तरह से इनोवेशन क्लब के तहत एक्टिविटीज़ हुई जिसने कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी नर्चर किया, लेकिन साथ साथ सिस्टमिक डेवलपमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फिर जब हमने देखा कि RCs जो हैं, RCs आर अवर बैकबोन, तो उनके वहाँ एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन का कल्चर स्टैब्लिश करने के लिए दी इनोवेशन क्लब्स एट RCs वर डेवलप्ड, स्टैब्लिश्ड। और वहाँ पे क्या हुआ, हमने उनके यहाँ स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। सो नाउ अब उनके यहाँ रेगुलर सेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स के सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा वो खुद इनोवेटर्स आइडेंटिफाई करते हैं, वो कुछ अच्छे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई करते हैं जो इग्नो स्टूडेंट्स हैं। और मुझे ये कहते हुए बताते हुए खुशी होगी कि हमारे मैक्सिमम RCs आज की तारीख में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दे आर रेडी। और अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पे भी इससे रिलेटेड कोई भी चैलेंज है तो दे कैन विजिट द नियरेस्ट RC और दे कैन कॉन्टैक्ट द रीजनल डायरेक्टर एंड दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम अपार्ट फ्रॉम NCID। नहीं, ये जो हम आज बात कर रहे हैं कि इनोवेशन कल्चर इन द यूनिवर्सिटी, उसमें इनोवेशन क्लब एट इग्नो और इनोवेशन क्लब एट रीजनल सेंटर्स, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि जब हम हेडक्वार्टर में बात करते हैं, जब तक फैकल्टी इनोवेशन के बारे में नहीं बात करेगी या स्टाफ बात नहीं करेगा, तब तक वो हम कैसे कहेंगे कि वहाँ एक कल्चर है। तो इनोवेशन क्लब एट इग्नो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एट द सेम टाइम जो इनोवेशन क्लब एट रीजनल सेंटर्स है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया रीजनल सेंटर्स पर वो कल्चर क्रिएट करने में। वहाँ स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमारे एकेडमिक जो पार्टनर हैं स्टडी सेंटर्स, वहाँ से भी एकेडमिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके का है। एट द सेम टाइम एक जब हम फैकल्टी की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि हमारी फैकल्टी या स्टाफ, चाहे वो रीजनल सेंटर पर हो या हेडक्वार्टर पर हो,
दे ऑल्सो टेक सम इनोवेटिव इनिशिएटिव। बहुत कुछ उनका अपने आप डे टू डे प्रैक्टिस में वो इनोवेटिव थिंग्स करते रहते हैं। तो ये भी हमें लगा कि क्यों ना हम उनको आइडेंटिफाई करें और रिकॉग्नाइज करें। तो रिसेंटली फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड हमने क्या शुरू किया है, बेस्ट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अवार्ड। तो डॉक्टर मौमिता, आप यू कैन टेल समथिंग अबाउट दैट बेस्ट इनोवेटिव प्रैक्टिस अवार्ड। Yeah, this Innovative Practices Award has been instituted just to recognize those efforts, as Dr. Sharma has said, कि हमारे जो रीजनल सेंटर्स में है या हमारे इग्नू में ही स्कूल्स में है या डिवीजन सेंटर्स में हैं, वहाँ दे रियली डू इनोवेटिव वर्क। और द बेस्ट पार्ट इज़ चूँकि वो सिस्टम के अंदर हैं और सिस्टम के गैप एरियाज़ को समझते हैं और उस गैप एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। एंड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स रियली वेल। सो उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन एंड वी हैव अवॉर्डेड द इनोवेटर्स इन दिस। अभी जो कॉन्वोकेशन गया उसमें अवार्ड भी दिए हैं। नहीं, ये जो प्रैक्टिस है बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन द इनोवेशंस बीइंग प्रैक्टिस बाय द फैकल्टी, बाय द स्टाफ एट द हेडक्वार्टर एंड रीजनल। और क्योंकि उसको जब हम जानेंगे तो दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे, दैट इज अगेन क्रिएटिंग कल्चर और उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जब हम इनोवेशन इकोसिस्टम के। और ये भी हमने देखा है कि जब भी कभी इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम बनता है तो बहुत सारे नए आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशंस डेवलप होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेटेंटेबल होती हैं। इनफैक्ट बहुत बार हमें ये नहीं पता था कि मुझे वो पेटेंट कराना है नहीं कराना है, क्या करना चाहिए। तो ये भी जब एनसीईआरटी ने फील किया तो देखा कि नहीं, देयर इज़ ए नीड फॉर सेटिंग अप एंटिटी, पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट। और वो जो पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट, किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है, डॉक्टर सुजाता, इफ़ यू कैन टेल अबाउट दैट बिकॉज शी इज़ कोऑर्डिनेटिंग दैट। Because a lot of innovations were coming up and then it was felt कि स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी आईपीआर के बारे में, पेटेंटिंग प्रोसेस के बारे में। तो इसीलिए एक पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट सेटअप किया गया और ये पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम, जिसमें कि हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं, हमारे इनोवेटर स्टूडेंट्स जिनके पेटेंट्स हैं उनको बुलाते हैं और वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, वो उनको बताते हैं कैसे पेटेंट फाइलिंग की जाती है, क्या उसके बेसिक निटिग्रिटीज़ हैं और क्यों ये ज़रूरी है। सो दे आर वेरी बेसिक लेवल प्रोग्राम्स विच were aimed to create an awareness among the students. and इसके अलावा हम competitions भी करते हैं, पेटेंट फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, competitions करते हैं। the basic objective is to provide guidance and support to the students and we will be taking the activities forward. अब हम प्रॉपर एक मैकेनिज्म सेटअप करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स का पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस में उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, उनको फंडिंग असिस्टेंस भी दी जाएगी। दिस इज ऑल्सो बीइंग टेकन अप नाउ। नहीं, एक चीज़ और जो हमने किया है कि टू आइडेंटिफाई दोज हु हैव फाइल्ड पेटेंट और हु हैव बीन ग्रांटेड पेटेंट, इसके लिए अभी जो सो आने वाले 26 अप्रैल को वर्ल्ड पेटेंट इंटरनेशनल आईपीआर डे है, तो उस दिन हम ये प्रोग्राम करेंगे और उसमें वी हैव स्टार्टेड फेलिसिटेटिंग द पेटेंटीज। सो अगर आप में से किसी का अगर पेटेंट है जो रिसेंटली 3 सालों में ग्रांट किया है, इफ़ यू हैव फाइल्ड फॉर पेटेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक अभी लास्ट डेट है उसके लिए, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अगर अचीवमेंट हैं स्टूडेंट्स के या फैकल्टी के या एलुमनी के, दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और जब रिकॉग्निशन मिलेगा तो एक तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, दूसरा कि दूसरे जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं या कुलीग हैं उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कल्चर की हम बात कर रहे हैं कि इनोवेशन स्टार्टअप कल्चर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से डे बाई डे वो स्ट्रेंथन हो रही है, उसमें मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि बहुत बड़ा रोल रहा है इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल का। बिकॉज इन 2018 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इनोवेशन सेल सेटअप हुई, देन वहाँ से एक डायरेक्शन था कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड सेट अप दी IICs। IIC मीन्स इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल। और जो इनोवेशन काउंसिल पहली साल में ही इग्नो ने उसको सेटअप किया, और सेटअप करने के साथ में जो हमारी और एक्टिविटीज़ थी उनमें एक बहुत हम कहेंगे कि एक
बहुत फास्ट स्पेस से काम करना शुरू हुआ, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम शुरू हुआ। पहले हम कर रहे थे इन जनरल, लेकिन नाउ आफ्टर दैट सिस्टमेटाइज हुआ, और फिर उसकी जो रेटिंग जिस तरीके से हुई हमें मिली 5 स्टार रेटिंग, रैंकिंग, और वो सब तो एनकरेजिंग रही। तो डॉक्टर मौमिता क्यों ना उसके बारे में भी बात करें कि हाउ IISc इज बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्रिएटिंग बस कल्चर। जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि IISc जो था, इग्नू वाला इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2018 में, एंड दिस वाज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस इनोवेशन सेल। और जो IISc इग्नू ने कॉन्स्टिट्यूट किया वो NCID में उसको हाउस किया, इट इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम NCID। एंड ये काउंसिल है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ इग्नू के फैकल्टी मेंबर्स ही नहीं हैं, बट दे आर ऑल्सो फ्रॉम इंडस्ट्री, एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर एकेडमिया, एक्सपर्ट्स फ्रॉम IPR के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, और वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं या एंजल फंड जो फंडिंग करते हैं वो है, बैंक के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट इनोवेटर्स हैं वो भी इसके मेंबर्स हैं, और इन जनरल ऑल्सो इग्नू के कुछ स्टूडेंट्स इसके मेंबर हैं। तो IISc का जो काम होता है वो थ्रू आउट द ईयर चलता है, ये साल भर का, हर साल का एकेडमिक ईयर ये फॉलो करता है। और इसमें बेसिकली 4 क्वार्टर में काम होता है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में इंस्पायर करते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उसमें यही अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ आइडिया कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस होते, डेमो डे होता है, एंड इवन फील्ड विजिट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जो हम हमारे रीजनल सेंटर्स करते हैं। इस तरह से सेकेंड उसमें क्वार्टर में जो है, जो 3 महीने बाद होता है, वो होता है प्रोटोटाइपिंग का, जहाँ पे ये आइडियाज़ को रिफाइन करके स्टूडेंट्स अपना प्रोटोटाइप बना के देते हैं। उसमें भी उस हिसाब से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उस हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, एग्जिबिशंस होते हैं, इवन फील्ड विजिट्स होते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वार्टर है उसमें वी डू द बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन, एंड देन द फाइनल क्वार्टर में स्टार्टअप कॉम्पिटिशन होता है। तो इस तरह से ये है। तो हमारे अभी तक 2018 से कई स्टूडेंट्स जो हैं, जो इनोवेटर्स इस राह पे चले हैं, और बहुत लोगों ने स्टार्टअप भी वो इस्टेब्लिश किया है। और IISc के अंदर अभी तक मुझे लग रहा है जब से 2018 से अब तक मोर देन 500 एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो 500 एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसी में, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट करने की हों, या एम्पावरमेंट की हों, या मेंटरिंग की हों, ये सारी एक्टिविटीज़ मिला करके, और कितना बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है। मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा कि चूँकि प्राइमरीली NCID वाज सेटअप टू डू इनोवेशन फॉर दिस सिस्टम, और वहाँ जिस तरीके से री इंजीनियरिंग या इनोवेटिव प्रोडक्ट हम डेवलप करते रहे, उसमें NCID ने जो अभी रिसेंटली 1-2 प्रोडक्ट जो डेवलप किए हैं, जैसे व्यास की बात करेंगे 1 मिनट में अगर आप बताएंगे, क्योंकि टाइम। देखिए, व्यास एक स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल है फॉर देयर एकेडमिक स्टडीज़। तो जो स्टूडेंट्स अदरवाइज फेस टू फेस सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं या वेब काउंसलिंग सेशन नहीं अटेंड कर पाते हैं, उन्हें एक जगह जो है उनकी सारी पाठ्य सामग्री, उनके सारे वीडियो लेक्चर्स, उनके असाइनमेंट्स सारी एक जगह मिल जाते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कशन फोरम्स भी हैं जहाँ पे वो जाके अपने टीचर्स से बात भी कर सकते हैं। तो करीब 50 से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो व्यास इनेबल्ड है, और इसका मेन पर्पस ये था कि स्टूडेंट्स को हर अपनी इंफॉर्मेशन और मटेरियल के लिए, स्टडीज़ के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और ये करीब 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट इससे कनेक्टेड हैं, और ये जो है काफ़ी फेमस हुआ है स्टूडेंट्स में। इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना और डिसेमिनेट करना, उसके लिए हमारा जो न्यूज़लेटर है इनोवेट, दैट्स प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो इनफैक्ट वो एक कहते हैं ना, मुखपत्र बन गया NCID का, जिससे चाहे वो कोई भी एक्टिविटी की रिपोर्ट हो, या इनोवेशन हो, स्टार्टअप हो। डॉक्टर सुजाता, इसके बारे में बात करते यू कैन नाउ रैप अप, वाइंड अप। या इनोवेट हम हर मंथ निकालते हैं, और इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज ऑफ इनोवेशन भी आती हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को भी हाईलाइट करते हैं, कई बार आर्टिकल्स भी होते हैं इनोवेशन से लेकर, इन्फॉर्मेशंस भी रहती हैं। तो ये काफ़ी वेल रिसीव्ड है, ये फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों में सर्कुलेट होता है, एंड इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड। विद दिस इट इज़ नाउ टाइम टू कंक्लूड। हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और डायस पे बैठे एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।